Hello guys, welcome to my channel. So this channel name is Divine Card Whisper. So today we are going to have some reading related to no contact situation. So if you are in a no contact situation, there has been a long time you didn't communicate with your person. So we will see what are they thinking, if they are going to come towards you, they are going to take action towards you, or they have been moved on. Okay, so let's get started. Okay, so I already cleansed my area and my cards as well, so I hope you are ready with my readings. So take your person's name 3 times, take a deep breath and release, and then we'll go with the reading. Okay, Wheel of Fortune, Four of Swords, Ten of Cups. What are they thinking in no contact situation? Queen of Cups. One more card. What are they thinking? The Hierophant. Okay, nice. Okay. See guys, I saw Wheel of Fortune. Okay, I hope you are clearly seeing this Wheel of Fortune. So I see there will be a turnover in your life. Okay, if you were in the stuck situation, or as already this situation is no contact situation, because I am seeing Four of Swords. It means taking a break from something, taking a time to conclude something, to come up with something. Four of Swords realize a break means किसी ने ब्रेक लिया हो किसी चीज़ से और उस पर बहुत ही ज़्यादा वो डीप थॉट में है. ओके, सो आई थिंक योर पर्सन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हैज़ बीन गिवन सो मच टाइम टू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप. ओके, मे बी कुछ बीच में प्रॉब्लम हुई होंगी जिसके वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया. ओके, और इस पर्सन ने इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया है और चीज़ों को समझने की कोशिश की है. विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी कम्युनिकेशन, इन्होंने अपने पे और इस रिलेशनशिप पे ध्यान दिया है, सोचा इस बारे में भी ये चीज़ आपको ना पता हो, पर इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इस रिलेशनशिप को अकेले में बैठ के सोचने में. बहुत सारी चीज़ इन्होंने देखी है, सोची है कि क्या रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ें. ओके, एंड आई थिंक अब ऐसा टाइम है, दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विच मीन्स देयर विल बी अ टाइम जब चीज़ें आई थिंक गोइंग टू बी बेटर. ओके, बिकॉज आई गॉट 10 of Cups which talks about family, commitment, happiness, having a long-term relationship, security, abundance. Okay, so I think this person has now recognized that this relationship is very good and there will be a long-term commitment. Okay, I think they are feeling love towards you, emotion towards you, they want to offer love towards you. Okay, and the Hierophant, the most commitment card in the tarot. Okay, this Hierophant talk about the commitment, the marriage, the long-term commitment. If you were in a relationship and there was a no contact situation and now this person will come to give you a commitment, a marriage. Okay, if you were dating and they have ghosted you, now they will come up towards you to take a step ahead for a new relation, for a new beginning in a relationship. Okay, because they have taken time, जितना उनको चाहिए था उन्होंने अपना टाइम लिया इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं आई हैं, बहुत समझ में आया है. ठीक है, बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं और ये चेंज आपके बेनिफिट के लिए हुई हैं, उनके बेनिफिट के लिए हुई हैं कि दे विल कम टूवर्ड्स यू टू गिव यू अ कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट,
रिलेशनशिप कमिटमेंट, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन विल बी ब्रेक्ड, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा क्योंकि इमोशंस हैं अभी भी, लव अभी भी है, फैमिली चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और द हेरोफेंट itself talks about commitment and marriage. I hope it's clear. Talks about marriage, okay? So I think कि ये पर्सन मूव ऑन तो नहीं हुआ है, पर हाँ इन्होंने अपना टाइम तो लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है इस रिलेशनशिप को समझने में। मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई ही इसी वजह से थी कि इनको समझ में नहीं आ रहा था, इनको ब्रेक चाहिए था ये सब चीज़ें समझने में, ओके। चीज़ें बहुत दिमाग से चल रही थी। किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चल रही थी, इमोशन में भी कम हो, नया नया था तो इमोशंस कम हो सकते हैं, और चीज़ें दिमाग से ज़्यादा चल रही हूँ जिसकी वजह से इनको ये ब्रेक लेना पड़ा कि उनको ये समझना था कि रिलेशनशिप क्या बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल इन द सेंस कि क्या वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। आई थिंक दिस इज़ अ पर्सन हु वांट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है। तभी वो शायद डायरेक्ट कमिटमेंट और शादी की बात करने अब आएंगे क्योंकि इनको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। Let's see more. What are they currently feeling in no contact situation? King of Wands. They want to take action towards you. They have passion towards you. They are confident now. कि yeah, they are ready to commit you, to have a long-term relation with you. Okay. What are they thinking towards you? The Hanged Man. Okay. In reverse, okay. I think I said ना फोर ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, बहुत ज़्यादा स्टक ऑन थे किसी चीज़ को लेके, सोच को लेके। हैंगमैन इन रिवर्स आया है, ये अब उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। जहाँ भी ये स्टक थे, जो भी ये सोच रहे थे कि ये रिलेशनशिप सही है कि नहीं, अब उस चीज़ से वो बाहर निकल रहा है, उस चीज़ से वो बाहर निकल के उस हैंगमैन सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं टू हैव अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विथ यू, ओके। व्हाट आर दे थिंकिंग इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? अभी हम ऑरेकल कार्ड भी देखेंगे, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, रेडी टू टेक एक्शन, ओके। दे आर थिंकिंग टू टेक एक्शन, पर सोर्ड्स है ना थोड़ा डिले दिखाता है। सोर्ड्स इज समथिंग थोड़ा डिले दिखाएगा, थोड़ा डिले हो सकता है। पैशनेट तो बहुत है कि वो आपकी तरफ आए, लेकिन एक होता है ना इतना टाइम के बाद अचानक से इंसान नहीं आता है, तो सोच रहे हैं, बट इट विल टेक सम टाइम, ओके। आई विल नॉट से कि वो अभी के अभी आ जाएंगे, एक दिन में आ जाएंगे, आपने ये रीडिंग बंद की तो आ जाएंगे, नहीं। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ डिले, ओके। और ये बात भी सच है कि इफ़ यू हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम, तो एक गैप आ जाता है बीच में, एक ऑकवर्डनेस आ जाती है, वो चीज़ ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट श्योरली दे हैव इमोशन टूवर्ड्स यू, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। मैंने कहा था ना, कुछ तो बर्डन था जो कि इन्होंने अब रिलीज़ किया है, अब ख़त्म किया है, शोल्डर से बर्डन इनका उतरा है। आई थिंक इनके लिए ये ब्रेक ना बहुत ही बेनिफिशियल था, इससे वजह से इनको बहुत सारी क्लैरिटी आई है इस रिलेशनशिप के बारे में, और ये बर्डन जो है ना मुझे रिवर्स में आया, तो अब ये ना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब रिलीज़ कर रहे हैं खुद को, ठीक है। खुद को इस इस बर्डन से, ये वाला बर्डन कि यार क्या होगा इस रिलेशनशिप में, चीज़ें अच्छी होंगी कि नहीं, जिन्होंने भी ये टाइम दिया ना सोचने में, अब वो चीज़ वो ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि नाउ दे आर बीइंग रेडी टू कम टूवर्ड्स यू। तो अब ये सोचने का मतलब नहीं है, तो अब ये सारी चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं, जहाँ भी वो स्टक थे उससे बाहर निकल रहे हैं, और अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, म्यूचुअल लव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, म्यूचुअल लव। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल इमोशंस हैं, लव है, आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हो, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, ठीक है। बट यही है कि कभी कभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून टाइम की भी बात करता है, टाइम वॉज नॉट गुड, ठीक है, ओके। द चैरियट, दे आर हियर, दे आर कमिंग,
टाइम विल बी टेकन, टाइम लगेगा, बट दे विल टेक एन एक्शन, they will come towards you. Okay, let's see what are the messages from your person. Oracle cards, देखते हैं क्या messages हैं उनके तरफ से आपको लेकर. Oracle message, what are they thinking about you? What are they thinking or what they want to say? क्या कहना चाहते हैं वो? Okay, absence. Why it is not capturing? Absence. I feel like a part of me is missing without you. I already said there is an passion, there is an emotion. इंसान जब प्यार करता है तो absence तो feel होगी, no doubt. Not this much universe. One by one. One more card. I will take only one more card. Okay, thank you. Neglect. I failed to give you what you need. मे बी ये ऐसे टाइम पे इन्होंने ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया जहाँ पे आपको उनकी नीड बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, तो अभी ये सोच के बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, दे हैव टेकन अ ब्रेक. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आई सेड कि इनके खुद के बर्डन्स थे इस रिलेशनशिप को लेके. ये खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि क्या ये रिलेशनशिप काम आएगा. अपनी इमोशन, मैं फाइनेंशियल तो नहीं बोलूँगी, पर मुझे इमोशनल नीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि ये खुद के इमोशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि क्या चीज़ें वैसी होंगी, क्या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, कि या सिर्फ चीज़ें, हो सकता है चीज़ें अच्छी ना चल रही हो आपके बीच में, दिमागी खेल बहुत ज़्यादा चल रहा हो, इमोशंस कम हो और इनको इमोशन की नीड ज़्यादा हो रिलेशनशिप में, और वो चीज़ मिल ना रही हो इनको. मे बी आपकी तरफ से भी प्यार हो, लेकिन होता ना कभी कभी हम दिमाग से ज़्यादा खेल लेते हैं कि यार अभी इमोशंस को इतना रिफ्लेक्ट होने नहीं देंगे, अभी पहले देखेंगे. वो देखने के चक्कर में ना सामने वाला थोड़ा डर जाता है और वो स्टेप बैक ले लेता है, और वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसी वजह से आता है. लेकिन मे बी इनको रियलाइज़ हुआ या यूनिवर्स ने इनको साइन दिया, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया था. तो आई सेड ना टाइम मैटर्स. तो उस समय टाइम ठीक नहीं था. नाउ आई एम गेटिंग कि दे विल कम टुवर्ड्स यू. ओके, वन मोर कार्ड. गिल्टी. दे आर गिल्टी. आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई कॉज्ड. उनको पता है कि इन्होंने ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लिया ना, इससे बहुत ज़्यादा पेन हुआ है दोनों लोगों को. ठीक है, काश वो चीज़ें आपसे कन्फ्रंट करते और बातें सॉल्व करते तो ज़्यादा बेटर हो, बट इट्स ओके. जो डेस्टाइन होता है वैसा ही होता है, वी कांट डू एनीथिंग. ठीक है, सो आई होप क्वेश्चन यही था कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन. तो आई होप इट विल बी गोइंग टू it will be like giving you a commitment. अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हो तो दे आर गोइंग टू गिव यू मैरिज. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक करने का है तो ऑफ कोर्स करेंगे, तभी वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ऐसे ही नहीं दे रहे. सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होगा, कमिटमेंट होगी, मैरिज की होगी, रिलेशनशिप फर्दर ले जाने के लिए होगी, बट टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. इट विल बी नॉट कि तुरंत हो जाएगा, बट देयर इज़ अ लव. ओके, म्यूचुअल लव. सो आई होप यू लाइक माई वीडियो. If yes, please subscribe and like my video, and then we will meet in next video. Okay, bye bye.